So we have already completed till question number 9. So let's start with question number 10 now. What is the question number 10, students? Please see here. The measure of the angles of a triangle are in AP. The measures of angles of triangle are in AP. So can you tell me what do you mean by AP, students? AP, that's the full form, but what does it mean? Arithmetic progression, that's absolutely right. Yes, AP means it is a sequence of numbers. It is a sequence of number which follow certain condition. And what is that condition? That if you take second term minus first term, third term minus second term, fourth term minus third term, and so on, the difference between consecutive terms is always same or common. Such a sequence of number which follow this particular arrangement is called as these numbers are said to be in arithmetic progression. So what they are saying, the three angles of the triangle are in AP, and the greatest is 5 times the smallest. Definitely there are three angles, and with the second condition, it says that one angle is the smallest angle, one angle is the greatest angle. The greatest angle is a 5 times the smallest angle. Then find the angle in degree and radian. Fine. So before I start solving it, may I know how can we start this particular problem? Anyone can try this? Just tell me orally. Anish is giving a minus d, a plus d. 10 standard का use कर रहा है वो. Right? When we have to find three numbers, we used to solve like this. Okay. What else? See, before seeing maths, whenever you think about something, we have to do by this way. For example, you people have taken that वो three numbers AP में है, तो a minus d, a plus d आ जाएगा. Then what next? बराबर है. हाँ, आशुतोष ने एक इक्वेशन लिखा. 5 times the smallest is equal to greatest. That is 5 times a minus d. Right? That equation in everyone chat, Ashutosh. So one condition we can get that 5 times a minus d equal to a plus d, and we will solve that equation. So we'll get an equation in a and d. And second equation, Anish is saying that sum of the angles of the triangle is 180. Okay, very good. So two conditions are there. We can solve them simultaneously and get the answer. Harshit is saying let the three angles be a, b, c, where a plus b plus 5a will be 180. So we will get a plus b as 30. Okay. How will you get a plus b as 30, Harshit? If a plus b plus 5a is 180, then how come a plus b will be 30? Yes, I'm giving you all time to think about this problem. Okay, Manisha is also saying something.
Manisha Chauhan. See, I told you in the last lecture only, in maths, there are different methods with the help of which you can solve a particular problem. So, as suggested by everyone here, let the three angles be A minus D, A and A plus D. We know whenever three angles are in AP, we have a habit of assuming in this way. So let the three angles are A minus D, A and A plus D. Okay. Then according to first condition you all are using that the sum of measure of angles, sum of angles is 180, right? So you are solving this as A minus D plus A plus A plus D is 180, right? If you solve this, you will get that minus D plus D gets cancelled. So you simply get here 3 times A is 180. So you get A as 60. Okay. And now we will use the second condition. So according to second condition, what is the second condition, students? That the greatest angle is 5 times the smallest angle. So greatest angle is A plus D is 5 times the A minus D. Now, since we already know A, we can substitute A here, right? So it will be 60 plus D equal to 5 times 60 minus D. And if you solve this, it will be 60 plus D equal to 300 minus 5D. Minus 5D will come this side. So D plus 5D, 60 will go that side. 300 minus 60. Then it will become 6D is equal to 240. So D will be 6 4s are 24 and D is then 40. And once you get A and D, you can tell the value, measure of angles. So therefore, the measure of angles are, first was A minus D, second was A, and third was A plus D. Now tell me, A minus D, A is 60 and D is 40. So it is 20 degree. This is 60 degree. This is 60 plus 40, 100 and 100 degree. Okay. They have also asked us in radian form. So here itself I can do 20 degree can be written as 20 into pi by 180. And if you solve this, you will get pi by 9 radian. So in terms of radian, it is pi by 9. In terms of degree, it is 20 degree. Similarly, 60 degree, that is 60 into pi by 180. 0 0 cancel, 6 3s are
So pi by 3 radian in radian and 16 degree. 100 into pi by 180. So 0 gets cancelled. Then 2 5s are 2 9s are. So I will get here 5 pi by 9 radian. This is in radian and this is in degree. I hope everyone have understood this. Any student have any doubt in this? Please ask. Okay. If you have understood everything, I have one question for you all. I have a question for you all. Just tell me whether these three numbers are in AP or not. 2, 5, 8. Are they in AP? Yes or no? Yes or no? I need the answer. Everyone, come on. They are. Absolutely fine. Uh, if I write another set of numbers like -15, comma -17, comma -19. Can you tell me, are they in AP or not? Yes or no? Yes or no? Okay. So you are saying this is also yes. Now my question is, in this set of numbers, the smallest number is 2 and the greatest number is 8. Whereas in the second set of number, smallest is -9 and the greatest is 15. Right? I hope you must be getting my question, what I'm going to ask you now. That when you assume that the numbers are a minus d, a plus d, how did you decide that this is the smallest one and this is the greatest one? How can you decide that? ये भी तो हो सकता है ना a plus d वाला नंबर ग्रेटर हो, सॉरी स्मॉलर हो, और a minus d वाला ग्रेटर हो. मेरा लॉजिक राइट है कि नहीं बच्चों? व्हाट डू यू थिंक? यस. तो फिर हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं बस ये दिख रहा है प्लस इसके वजह से? ये तो ए और डी के ऊपर डिपेंड करता है ना. ये सर नो, अगर ए नेगेटिव और डी भी नेगेटिव है तो नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करेंगे तो वो तो और भी छोटा होते जाएगा. अभी बोलोगे सर आपको तो ए और डी का वैल्यू मालूम है ना, 60 और 40 है तो पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये ग्रेटर होगा. बट वो तो हमको बाद में पता चला. हमने तो कंडीशन पहले यूज कर लिया कि भाई ये जो है इसका 5 टाइम्स ग्रेटर है. तो अगर किसी टीचर ने वहां पर क्वेश्चन मार्क किया कि this is 5 times this, then why not this is 5 times this? You should solve two cases then. Yes or no? एक केस आपको बनाना पड़ेगा कि if this is greater than this, बराबर है, एंड एक केस बनाना पड़ेगा ये इससे 5 times greater है. Right? So do we get the same answer, students? Can you all please check? See, in 11th standard we have to be perfect in every case. हाँ, कोई भी स्टेप आप करो तो कोई टीचर ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये किधर, मतलब कैसे आया. अगर वो पूछेगा तो यू शुड बी एबल टू आंसर हिम और हर कि नहीं सर दिस इज द कंडीशन विच वी हैव यूज्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कैन राइट लाइक दिस. ओके, सो टेल मी, अगर मैंने दूसरा केस लिया a minus d is 5 times a plus d. Manoj answers here that the number which lies on right of the number line is greater. Fine. But how do you decide that a minus d is on right of a plus d or a plus d is on right of a minus d? वो तो नंबर होता है तो हम डिसाइड करते हैं ना कि भाई 2 और 8 में ग्रेटर क्या है तो 8 ग्रेटर है.
2 लेस है। -19 और -15 में -15 नंबर है, नंबर मालूम है तो आप बता पाओगे ना ग्रेटर और स्मॉलर। यहां तो हम वेरिएबल में बात कर रहे हैं, और डिफरेंस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो ना। हमने तो पढ़ा है एपी में डी नेगेटिव भी आता है, ए नेगेटिव भी आता है। हाँ, तो मनोज आप जो बोल रहे हो वो मतलब राइट आर्ग्यूमेंट नहीं है इसको स्मॉलर और इसको ग्रेटर बताने का। यस, सो प्रेम ने जैसे सॉल्व किया है, डी इज -40 इन दैट केस, राइट। फाइन, तो डी -30 आया, तो ए क्या आया रहेगा आपको, ए क्या आएगा, व्हाट विल बी ए देन। Saisha is saying D can be 40 plus 40 or minus 40 both. I'm not solving it, so you all please tell me. आपने जब कंडीशन को ऑपोजिट किया तो D you are getting -40, right? And A, someone was saying that A was 100. A was 100 or 60? Yes, 60. So it is going to give you same answer, right? But why I told you why to think in this way, because बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग को बोलते हैं ना हैबिट होता है कि उसी पर्टिकुलर वे से सॉल्व करना होता है। फिर कभी कभी हमको उसका जब रिवर्स सोचने को होता है तो हम नहीं सोच पाते। तो कभी भी आप 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में आप मैथ्स करोगे, कोई भी कंडीशन ऐसे आंख बंद करके हमको नहीं अप्लाई कर देना है। क्वेश्चन अराइज तो हुआ था ना, मैंने जो आपको क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड किया कि व्हाई यू हैव टेकन a plus d एज अ ग्रेटर नंबर, दैट वाज अ वैलिड क्वेश्चन, राइट। सो इन दैट केस अगर प्रॉपरली कोई टीचर अड़ गया तुमको मार्क्स देने में, आई विल नॉट गिव यू फुल मार्क्स बिकॉज तुमने एक केस तो नहीं लिया। तो दैट इज एब्सोल्युटली राइट, बराबर है, ही हैज अ राइट टू कट योर मार्क्स, राइट। सो दैट इज व्हाई यू ऑलवेज हैव टू सी ऑल द ऑप्शंस। ठीक है, तो आपने देखा कि जब मैंने दूसरा लिया, अगर a माइनस डी को हमने ग्रेटर लिया a प्लस डी से और तुमने सॉल्व किया, तो आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग d एज -40 एंड a इज स्टिल 60। अब होगा क्या इसमें, तो पहला है a माइनस डी, a माइनस डी मतलब 60 माइनस -40, then here you will get 100, here you will get 60, and here you will get 20. So you will get the same three angles. ठीक है, that is 100, 60 and 20. There we used to get 20, 60 and 100. Answer is right, but I wanted to tell you that कि ये एक केस भी हमारा एक्स्ट्रा ऐड इसमें हो जाएगा, right? I hope everyone understood. सबको ये जो लॉजिक मैंने दिया वो समझ में आया, क्यों करना था ये एक्स्ट्रा पार्ट। ओके, since you all have done using a minus d, a plus d, ये सारे केसेस बढ़ गए एक्चुअली देखा जाए तो। अदरवाइज ये सम और भी इजी और बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व हो सकता था। कैसे, तो लेट्स सी द ऑल्टरनेटिव मेथड। और I will simply start like this, that let, okay, the angles of triangle are, angles of triangle are
angle A, angle B, and angle C. These are the three angles. Okay? Also, it is given that angle A, angle B, angle C are in AP. Is it right, student? The angles are in AP. If they are in AP, this is one thing they have given. Second, what they have given, and the greatest number is 5 times the smallest number, smallest angle, right? अभी मैं जो लिखने जा रहा हूं मुझे बताना. Also, angle C is 5 times angle A. This both are given. Now question should come from you all, sir, why will C be 5 times greater than A? How did you decide here that C is a greater and A is a smaller? Yes or no, students? Is this question coming in your mind? Yes or no? Yes. So can anyone would like to tell me the answer? सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है, अनिश बोल रहा है. ठीक है, मैं बोल रहा हूं ऐसा हम लिख सकते हैं. मैं राइट हूं. C is greater than C is 5 times A. A is not 5 times C. वो केस आएगा ही नहीं यहां पर. बताओ क्यों? नहीं, प्रेम ने लिखा C कैन बी 5 टाइम्स A कैन बी 5 टाइम्स C. मैं बोल रहा हूं A कैन नॉट बी 5 टाइम्स C. हमेशा C ही 5 टाइम्स A आएगा. टेल मी द रीजन. टेल मी द रीजन. नो assumption. I can prove it. This is not my assumption. Assumption तो फिर लास्ट सम में भी मैं बोल देता ना कि तुमने एज्यूम किया है A प्लस डी बड़ा है, A माइनस डी छोटा है. assumption नहीं. मैं बोल रहा हूं C ग्रेटर ही होगा. Why? Saisha is saying that T3 is greater than T1. It is not so, Saisha. Last problem में मैंने बताया ना, T1 was -11, ये -13, ये -15. किधर T3 greater है, Saisha? I can see T3 is smaller. So that is not the criteria to say that T3 है इसके लिए वो greater होगा. सृष्टि बोल रही है because they are in AP. बच्चा ये भी तो AP में ही है, तो भी तो -15 greater नहीं है. That is not the reason. Come on, tell me. हमने 10th में पढ़ा है ये सब. See, while cracking CET, while cracking NEET examination, while cracking JEE examination, हम कहाँ पर पीछे रह जाते हैं ना, वो समझना है. हम किसी भी प्रॉब्लम को बस अपने एंगल से देखते हैं, एक पर्टिकुलर वे से देखते हैं. Anish has given the answer very truly. Half partial answer right है, but partially correct भी है. First of all, I have assumed that let the angles of the triangles are, yes, major of the angles of the triangle are A, B, and C. When I say A, B, and C are majors of angles of triangle, it can never be negative, first of all. And when they are not negative, it means they are positive. And when they are positive arranged in AP, it means C will always be greater, student. अरे 3 पॉजिटिव नंबर अगर AP में है तो वो हमेशा C ग्रेटर होगा क्या A से, कि नहीं होगा? तो यहां पर जो नेगेटिव केस है वो हमको लेना ही नहीं है. अभी किसी का दिमाग चल रहा है क्या? और अगर बहुत लोगों को अगर कंफ्यूजन रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, तो आप स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में ऐसा भी ले सकते हो. लेट एंगल A is the smallest angle, angle C is the largest angle, and angle A, angle B, angle C is in AP. Yes.
हाँ, सो दैट विल बी मोर क्लियर, मतलब अगर आप फंसना नहीं चाहते हो, क्योंकि अभी सबने यस बोला, बट मैं और एक एग्जांपल देता हूँ आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। मेरे पास नंबर है 20, 15 एंड 10। देखो भाई ये तीनों पॉजिटिव है, बट स्टिल T3 इज नॉट ग्रेटर, T1 इज ग्रेटर। देखा, अभी भी तुम लोग फंस गए। मैंने एक कंसेप्ट दिया, मैंने एक लॉजिक दिया, वो लॉजिक से मैंने बताया देखो तीनों पॉजिटिव है तो हमेशा थर्ड वाला ग्रेटर ही होगा, और तुमने एग्री किया, सबने यस यस लिखा, फिर दिमाग नहीं लगाया तुमने। तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए ऐसा 3 नंबर, अरे ऐसा कैसा थर्ड वाला ग्रेटर हो गया, सोचो नंबर, सोचो एपी का नंबर सोचो, तो तुमको ये आना चाहिए कि सर 2015 10 में भी तो आ सकता है ना, डी नेगेटिव है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। उससे मैंने क्या कंसेप्ट बोला, मैंने क्या बोला, ए बी सी पॉजिटिव है इसलिए सी हमेशा ग्रेटर होगा। इसमें ऑब्जेक्शन आना चाहिए था मुझे, और ऑब्जेक्शन में मुझे ये एग्जांपल तुम लोग को देना चाहिए था। मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग माई लॉजिक? मैं क्या आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ? हाँ, तो ये जो मैंने लिखा आपको बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ, वो आपको एग्जाम्पल देके डिसप्रूव करना था मुझे, नहीं सर यू आर रॉन्ग, वी कैन नॉट डू लाइक दिस, राइट? ओके, सो अभी फाइनली इसमें भी केस बन जाएगा फिर तो, सी इज 5 टाइम्स ए एंड ए इज 5 टाइम्स सी। स्टार्टिंग में मैंने क्यों बोला, देखो मेरे को तो आपको फंसाने का काम करने का, यस, आपके कंसेप्ट को मुझे मूव करना है। हाँ, एकदम 10th स्टैंडर्ड तक ना सब मैथ्स ऐसा एक जगह चिटका हुआ है, रट्टा मार के हमने मैथ्स पढ़ा है, ठीक है, ऐसा होता है, क्यों होता है हमको भी मालूम नहीं है। इसके लिए मैंने बोला सी इज ऑलवेज 5 टाइम्स ए, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। तो तुम्हारा थॉट ही नहीं गया फिर दूसरे वे में। यस, समटाइम्स यू नो व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन रहता है एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू का सपोज 3 लाइन्स का क्वेश्चन है ना, तो एक्चुअली क्वेश्चन इज ओनली 1 लाइन, बट जो सेकेंड और थर्ड लाइन है ना, वो जो गिवन है, जो भी उसके अंदर कैलकुलेशन दिया रहेगा, उसका एक्चुअली कोई पार्ट ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, उसका यूज ही नहीं होने वाला है। यस, बट वो लंबा दिखा रहता है, तो हमको क्या लगता है, क्वेश्चन बहुत लेंदी है, अभी ये कंसेप्ट किधर से ऐड होगा, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है, अगर बेस स्ट्रांग है ना, तो हम लोग ऐसे किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होंगे, ट्रैप्ड नहीं होंगे हम लोग। यस, सो आई होप एवरीवन अंडरस्टैंडिंग कहां पर हम मिस्टेक कर रहे थे। ओके, सो अभी टू बी मोर प्रिसाइज हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में एज्यूम कर लेंगे, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी ए, द लार्जेस्ट एंगल बी सी, such that angle A, B and C are in AP. And then I can write this way. Yes or no, students? Hmm? Smallest angle is A and the largest angle is angle B. So I can write like this. तो अभी इससे क्या मिलेगा अपने को, तो सेम है ना, ये एपी में है, तो एपी में है मतलब सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, उसको सॉल्व करेंगे। ये स्टूडेंट्स आएगा आप लोगों को, तो सी और ए में एक इक्वेशन मिल जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी सी और ए में एक इक्वेशन है, या तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, वो यूज कर सकते हैं हम लोग। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? चलो इधर देखो, फर्स्ट कंडीशन, ए बी सी are in AP, it means B minus A is C minus B, right? Now C we know as 5 times A, so we write that. So B minus A is equal to C is 5 times A. So 5 times A minus B. Bring everything this side or take this that side. So 5A plus A will become 6A.
and this will go that side. So it will become minus b minus 2b equal to 0. 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, जस्ट अ मिनट, हाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 3a माइनस एंगल b इक्वल टू 0. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, मेजर ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल. सेकेंड कंडीशन, a plus b plus c is 180. So a plus b plus 5 times a, right, is 180. So 6 times a plus angle b is 180. This is equation 2. And now we can simply add these two equations. So adding 1 and 2, 1 plus 2 करेंगे तो b भी cancel हो जाएगा. I will get 9 times a equal to 180. So angle A will be 20. And if angle A is 120, so C is 5 times A. So C will be 100. और B हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे. या तो A और C मालूम है, 100 plus 20 हो गया, तो B क्या होगा, 60 होगा. दिस वॉज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बट इस एक प्रॉब्लम से हम लोग ने बहुत कुछ सीखा. राइट स्टूडेंट्स, एवरीवन अंडरस्टूड एवरीथिंग? ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10. आई थिंक आप लोग ने भी सॉल्व कर लिया होगा ऑलमोस्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11. A cyclic quadrilateral, two adjacent angles. Achha, there's some grammatical mistake there. A cyclic quadrilateral, two adjacent angles are 40 and pi by 3. Find the angles of the quadrilateral in degree. Come on, how will you tell? कैसे निकालेंगे हम लोग एंगल्स, जल्दी बताओ. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वी हैव डन इट इन 10th स्टैंडर्ड. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कम ऑन स्टूडेंट्स. सम ऑफ द एंगल्स आर 360. अरे ऑब्वियस, वो साइक्लिक क्या, कोई भी होने दो. कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल तो 360 होता है सब. वेरी गुड Shravan, Anish. Yes, opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. It means the sum of opposite angles are always 180 degree. Right? So what do you think, कैसे करना चाहिए सम को अपने को? ओरली आंसर आ गया एक्चुअली देखा जाए तो. देखो, दो एडजेसेंट एंगल दिए 40 और पाई बाई 3. पाई बाई 3 को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, ये तो मैंने याद करने के लिए आपको बोला था, बाय हेड करने को बोला था. पाई मतलब 180, 180 डिवाइड बाय 360. तो एक एंगल है 40, एक एंगल है 60. तो 40 के जो ऑपोजिट वाला एंगल होगा वो क्या होगा, 140. यस और नो? और 60 के ऑपोजिट वाला जो एंगल होगा वो 120 होगा. बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स के जो सम होते हैं वो 180 होते हैं. तो ये ओरली सॉल्व हो गया. यस और नो स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल. तो आप बस एक डायग्राम बना दोगे, ए बी सी डी लिख दोगे, ये दोनों को ए बी ले लोगे, सी और डी नहीं मालूम है, फिर हम लिखेंगे सिंस इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180. तो 40 प्लस बी सी इज 180, सी इज 180 माइनस 40. सिंपल. अरे आएगा क्या आप लोग को? बाद में चारों को डिग्री में भी और चारों को रेडियन में भी कन्वर्ट कर देना है. अच्छा, रेडियन में नहीं, डिग्री बोला है तो टेंशन नहीं, वी हैव टू डू इट इन डिग्री. Clear? 11th, you will be able to manage? Great. Question number 12 now. One angle of the quadrilateral has measure 2 pi by 5. One angle. And the measure of other three angles is this. Find their measure in degree and radian. So simple it is. Common multiple ले लेंगे. हाँ? चलो ये करो मेरे साथ. Start करो. Question number 12.
So one angle is given as 2 pi by 5. So let me first convert this into degree. 2 pi by 5, convert it. 2 pi by 5 into 180 upon pi degree. If you solve this, pi gets cancelled. Then 5 ones are 5 threes are 15, 5 6 are 30. So 36 twos are 72 degree. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, लेट द कॉमन multiple be x. If x is a common multiple, then the three angles क्या हो जाएंगे, therefore the measure of remaining three angles are, what was the ratio in the question? 2:3:4. So I will say it is 2x comma 3x degree comma 4x degree. 2 3 4, right? That was a, just a minute, yeah, 2 3 4. Then simple, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा. We know that sum of measures of angles of quadrilateral, right? Sum of angles of quadrilateral is 360. Add them. So what I'll get? एक angle तो दिया है 72. So 72 plus 2x plus 3x plus 4x is 360. Solve this, come on. 72, 2 plus 3, 5 plus 4, 9x is 360. Right? So 9x will be how much? 360 minus 72. So then 9x will be how much? 10 minus 2, 8. 15 minus 7, 8. 288. Right, students? So x will be how much? 9 threes are 27. 9 twos are 18. So x is 32. And once we get x, we can talk about the rest of the angles. So 2x is 2 into 32, 64 degree. 3x, 3 into 32, 96 degree. 4x, 4 into 32, 128 degree. And fourth one to already given tha, 72 degree. And then we will convert them into radian later on, multiplying by pi by 180. Yes, very simple, students. And to verify, you can add all the angles, you will get 360 only. Done? Clear, all of you? That's great. Moving ahead. Question number 13. Find the degree and the radian measures of exterior and interior angles of regular pentagon, regular hexagon, septagon, and octagon. What we have to find? Measures of exterior and interior angles, right? Have you heard about this all works? Exterior and interior angle. Okay. So how will you solve pentagon means you all know, right?
So in pentagons, how many interior angles and how many exterior angles are there? Tell me. So what will be the angle of interior angles of a pentagon? Regular pentagon. Huh? What do we mean by regular pentagon? Hello. Regular means convex. Okay. It is not, so it's not convex. What do we mean by normal pentagon and regular pentagon? Yes. Anish has rightly said, when all the angles of and the sides are equal, then we say that that particular, we can say, quadrilateral is a regular quadrilateral, right? So it's a regular pentagon, it's a regular hexagon, it's a regular septagon, and a regular octagon. There is one formula with the help of which we can find out the interior angle of every such regular figures. Okay, so we will write down that formula first for interior angle. So all of you write down for question number 13. Acha, before I give you formula, do you know any such formula? Do you know any such formula? Okay, write down measure of each interior angle, each interior angle of a regular polygon, regular polygon is equal to n minus 2 into 180 degree divided by n. यस, ये फॉर्मूला है. तो सबसे पहला क्वेश्चन था पेंटागन का. मैं पहले इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर रहा हूँ. सो फर्स्ट वाज पेंटागन. So pentagon means n is 5. So then we can find out what. Yes, each interior angle of pentagon, each interior angle of pentagon is what? N minus 2. So 5 minus 2 into 180 divided by 5. So if you solve this, 5 minus 2 is 3, 185. So it will be how much? 3 into 5 3s are 5 6 are 108 degree. So 108 degree will be the angle, measure of the angle of each
interior angle of a pentagon. I hope everyone understood this. Yes? Okay. And like this, we can find it for pentagon, that is 5 side, hexagon, that is n is 6, heptagon, n is 7, and octagon, n is 8. Right? Acha, sometimes the question is asked, what is the sum of interior angle? Here what we have got, see pentagon, if I try to draw here, regular, so I'm not very good in drawing, but still suppose I draw here pentagon 1, 2, 3, sorry, 3, 4, 5. Right? This is regular pentagon, for example. Then this is interior. So this is we have got as 108. Yeah. This is 108. This is 108. This is 108. This is 108. And this is 108. But if the question is asked sum of interior angle, then what will you do? 108, 108. आप 5 टाइम्स ऐड करोगे ना? यस. तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मालूम है? एन नहीं रहेगा. समझ रहे हो क्या? ये जो डिवाइड बाय एन किया ना हमने, ये डिवाइड बाय एन मतलब वी आर डिवाइडिंग इनटू 5. तो यानी ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो सम का फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स. अब अगर 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, तो ईच एंगल मिल जाएगा. 6 है तो 6 से डिवाइड कर दिया, 7 है तो 7 से डिवाइड कर दिया. समझ में आ रहा है बच्चों आपको? सो दिस न्यूमरेटर इज अ फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द polygon, regular polygon. Okay, so please just make a note of it and solve this first one. Solve करो चलो. हाँ. Okay, students. I was not saying anything. I give you time to write now. So this way we can do all interior angles. In question, we also have exterior angles, right? So what do we mean by exterior angles? Do you all know exterior angles? Suppose if I draw the pentagon only, regular pentagon. Suppose considering this as a regular
pentagon, then what are exterior angles in regular pentagon? So exterior angles में क्या होता है कि हम इसको extend करते हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट को ऐसे, ठीक है, इस तरीके से extend करते हैं। तो ये जो एंगल बनते हैं ना यहाँ पर, तो ये जो एंगल्स बनते हैं ना, ये 1 2 3, ये चौथा और ये पांचवा, इनको हम एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो क्या मुझे बता सकते हो कि अगर मुझे इस एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है, इस वाले को, ये सपोज पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, तो मुझे बताओ इस एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए कैसे करोगे आप? गिविंग यू 30 सेकेंड्स। ये स्टूडेंट्स, हाँ, जैसा आप लोग बता रहे हो दैट सर दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इन लीनियर पेयर, एंड इफ दे आर इन लीनियर पेयर द सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी 180। ठीक है, अब ये तो इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है, तो इंटीरियर हमको मालूम है, तो एक्सटीरियर क्या आएगा, 180 में से इंटीरियर सब्ट्रैक्ट कर दो। ये समझा क्या आपको? तो ऑलरेडी आपने इंटीरियर फाइंड किया पेंटागन का, तो अब पेंटागन का एक्सटीरियर आ जाएगा क्या? You will same way you will write that each exterior angle of a pentagon is equal to 180 minus interior angle of a pentagon. अभी that is going to be same. हाँ, अगर वो रेगुलर पेंटागन नहीं होता ना तो हर एक का फाइंड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिर इंटीरियर डिफरेंट डिफरेंट होते, इंटीरियर डिफरेंट होते तो फिर एक्सटीरियर भी डिफरेंट होते। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस। तो जैसे वन इंटीरियर एंगल आ गया वैसे ही वन एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 minus interior. Can you manage that? Understood everyone? So we will solve for this pentagon. So here I'll write each exterior angle of pentagon is equal to 180 minus interior angle. So it is going to be 180 minus 108, and that is going to be 72 degrees. Have you all understood the concept of interior and exterior angles of regular polygon? Okay, fine. Now the next question and the last question of this particular exercise. Find the angle between hour hand and minute hand in a clock. So to understand this question, हाँ, आप सबको वॉच देखने आना चाहिए, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो वॉच कैसे देखते हैं? सबको मालूम है ना, इतना तो बेसिक। नहीं तो मैं बोलूंगा 10 past 11, इसका मीनिंग ही नहीं मालूम है तो फिर गए हम लोग, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यस, व्हाट डू मीन बाय 10 past 11? कितने बजे? 10 past 11, 11:10, वेरी गुड। 20 past 7, कम ऑन, 20 past 7, 7:20, 30 past 1, 30 past 1, 1:30, okay. Then quarter to 6, quarter to 6, come on students, quarter to 6, 5:45, 2:20, 12:10 वो तो गिवन ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
सो आई थिंक सबको ये तो समझ में आता है कि 10 पास 11 का मतलब क्या होता है, 20 पास 7 का मतलब क्या होता है. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस सम, थोड़ा सा एक वॉच का एग्जांपल लेके हम लोग थोड़ा कुछ समझते हैं, फिर हम लोग सम्स को स्टार्ट करेंगे. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना? 10 पास 11. 10 पास 11 में आर हैंड कहाँ पर होता है और मिनट हैंड कहाँ पर होता है? 10 पास 11. कम ऑन कम ऑन. सोच के बोलो. ऐसा रैंडम आंसर मत दो. थिंक. 11 बजकर 10 मिनट हुआ है, तो कहाँ पर होगा आर हैंड मिनट हैंड? आई एम ट्राइंग टू ऐड अ सर्कल, बट मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा. यस. स्टार्टिंग में सब लोग क्या बोल रहे थे? किधर होगा? 11 पे होगा. हाँ. इसलिए अभी इतना इजी होगा तो मैं आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा स्टूडेंट, राइट? तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा आपको सोचना है कैसे करेंगे हम लोग, राइट? जस्ट मिनट. आई एम, इसमें सर्कल का ऑप्शन नहीं आ रहा है. क्लास नोटबुक, व्यू. आई थिंक आई हैव टू ड्रॉ द सर्कल बाय माय ओन. चलो, नो प्रॉब्लम. This is a typical structure of a wall clock, right? We know that here it is 12, 3. Here it is 3, 6, and 9, right? Then this is 12, 3, 6, 9 main numbers. After that, we also have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Here we have a center, right? Now, first of all, you tell me, what do you mean by 1 hour equal to how many minutes? 1 hour equal to how many minutes? 60 minutes. Fine. 60 minutes. सी, ये कंसेप्ट को एकदम ध्यान से समझो. अगर आपको कुछ भी अगर मिस हो गया तो फिर आप नहीं कर पाओगे इस सम को. जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, आई जस्ट गॉट अ कॉल, अर्जेंट कॉल. जस्ट 1 मिनट, होल्ड ऑन. हाँ सर, हाँ सर, बोलो. हाँ, बोलो ना.
और थोड़ा डिफिकल्ट, हाँ तो हो सकता है मतलब ट्राई फॉर्म भरने को बोलो, पहला आरजी। सॉरी स्टूडेंट्स। हाँ, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स आप लोगों ने बोला, एब्सोल्युटली फाइन। अभी हम लोग को क्या फाइन करना है मालूम है कि अगर सपोज मैं दो कलर यूज कर लेता हूँ। सपोज ये जो ब्लैक है, दिस इज माई मिनट हैंड, ठीक है, और जो ब्लू है दैट इज आर हैंड। सो राइट नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम ऑन दिस वॉच? कितने बज रहे हैं? कितने बज रहे बच्चों? एग्जैक्टली 3। ओके फाइन, ध्यान से सुनना मेरे को। सी, अभी हमको फाइंड करना है मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का एंगल। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि हर एक मिनट में कितने एंगल फॉर्म होते हैं, कितने डिग्री का एंगल बनता है, वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, मैंने क्या बोला नहीं समझा, मुझे मालूम है। चलो मुझे ये बताओ, ये आर हैंड है, ये मिनट हैंड है, वो यहाँ पर है, ठीक है। फिर वो रोटेट होगा, 4 पे आएगा, 5 पे आएगा, 6 पे आएगा, 7 पे आएगा। ऐसे ये पूरा रोटेट होके ब्लू वाली जो आर हैंड है वो सपोज घूम के वापस 12 पे आ गया। मुझे बताओ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ? What is the angle between minute hand and hour hand? You will all say 360 degree. So one thing we can conclude here that पूरा ये जो 60 मिनट्स है, 60 मिनट्स में कितना कवरेज होता है? 360 डिग्री का कवरेज होता है, राइट? अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि सपोज वो मिनट जो हैंड था वो इधर तक, सॉरी आर हैंड इधर आया, तो तुम क्या बोलोगे कि सर ये तो कंप्लीट का हाफ है, राइट? तो अगर ये कंप्लीट रोटेट होता तो 360 डिग्री था। अब ये हाफ रोटेट हो रहा है तो 180 डिग्री होगा, उसका हाफ होगा, इजंट इट? ओके, वेरी गुड। अच्छा, मैंने अगर बोला कि ये इधर नहीं है, ये इधर है, तो तुम बोलोगे सर दिस लुक्स लाइक क्वार्टर ऑफ द फुल सर्कल, यस और नो? ये पूरा होता तो 360 होता, ये क्वार्टर है, तो 360 का क्वार्टर मीन्स 1/4, दैट विल बी 90 डिग्री होगा। तो 3 पे, 6 पे, 9 पे है तो दैट्स इजी टू फाइंड आउट, राइट? बट अगर इन बिटवीन है तो कैसे फाइंड करेंगे? फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट फॉर एवरी मिनट वो कितने का कवरेज होगा। ध्यान से देखना, 60 मिनट्स में आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। सो इन 1 minute, in 1 minute, what will be the angle between our hand and minute hand? That will be 360 degree upon 60. अरे यस और नो? 60 मिनट्स में वो रोटेट होता है, रोटेट होता है और इधर पहुंचता है तो 360 होता है, राइट? अभी मैंने उसके 60 टुकड़े कर दिए, इसका मतलब 1 मिनट में वो कितना डिग्री फॉर्म करेगा? सॉरी, 360 divided by 60, that is 10 degree. And you can verify. See, सपोज वो इधर गया 1 मिनट, इधर 1 2 3 4 5 मिनट, फिर 6 7 8 9 10 मिनट्स, 11 12 13 14 15 मिनट्स फॉर एग्जाम्पल, 16 17 18 19 20। यस और नो? तो ये जो फर्स्ट मिनट पे मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा इसको इनलार्ज करता हूँ, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट इनलार्ज। सपोज ये जो आर हैंड है, मैं जो बना रहा हूं आर हैंड, इट इज एट दिस पोजीशन 1 वाले पे, तो कितना मिनट हुआ? 1 मिनट हुआ ना?
तो 1 मिनट में आर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में कितना रहेगा? अरे सॉरी, ये 10 नहीं 6 डिग्री, क्या लिख रहा हूँ अभी, जोश में आ गया मैं। 6 डिग्री कितने डिग्री का होगा? 6 डिग्री का होगा। सो अगर वो सपोज मैंने बोला कि वो अभी 1 मिनट पे नहीं है, हाँ अभी वो 1 मिनट पे नहीं है, वो 3 मिनट पे, 3 मिनट पे इधर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 मिनट्स कवर किया, ईच मिनट इज 6 डिग्री, सो इट मींस इट विल बी 18 डिग्री। ये सबको समझ में आ रहा है? ओके, यस, एवरीवन अंडरस्टूड? हाँ, अभी मेरा और एक बात सुनना। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा एक स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो गया था, आई एम करेक्टिंग इट। मैंने क्या बोला था स्टार्ट में कि ये जो आर हैंड है वो इधर से पूरा रोटेट होके इधर आएगा तो 60 मिनट्स होगा। सॉरी स्टूडेंट, दैट वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आर हैंड नहीं, मिनट हैंड। अरे आर हैंड इधर से इधर आने को कितना टाइम लगता है मालूम है क्या आपको? वो 1 आवर में नहीं जाता है, वो कितने आवर्स में जाता है? यस, कितने आवर्स में? कम ऑन, 12 और 24, 12 और 24, 12 आवर्स, राइट? तो ये जो कैलकुलेशन मैंने लिखा है वो कैलकुलेशन किसका है? मिनट हैंड। मिनट हैंड in 1 hour, that is in 60 minutes, covers 360 degree. Therefore minute hand in 1 minute will cover 6 degree. Am I clear? Okay. जैसे हमने मिनट हैंड का निकाला वैसे ही हम आर हैंड का निकालते। आर हैंड, ठीक है। आर हैंड को कैसे निकालेंगे? एक ये जो पूरा राउंड लेगा, तो बताओ कितना कवर होगा मुझे आर हैंड का एंगल? टेल मी। चलो मैं थोड़ा और इजी करता हूँ थोड़ा समझने के लिए। ये मेरा 12 o'clock है, ये 1 o'clock है, ये 2 o'clock है, ऐसा सपोज है, और यहाँ पर ये 3 o'clock है, और ये मेरा आर हैंड है फॉर एग्जाम्पल। ओके, मैं बोलता हूँ आर हैंड यहां से यहां पर आया 1 पे। मुझे बताओ 12 से 1 आने के लिए आर हैंड को कितना टाइम लगेगा? डिग्री मत बताओ, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम। हाउ मच टाइम विल पास? 1 hour 60 minutes, absolutely right. It means that 60 minutes of our hand is equal to 5 minutes of minute hand. Yes or no? 5 minutes of minute hand. ये समझ रहे हैं क्या? 60 minutes of our hand is 5 minutes of minute hand. और 5 minutes of minute hand कितना कवर करता है? तो 5 into 6, क्योंकि 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री कवर करता है, तो 5 मिनट में वो 30 डिग्री कवर करेगा। सो इट मींस 60 मिनट्स में आर हैंड 30 डिग्री कवर करता है 60 मिनट्स में। अब मुझे फाइंड करना है 1 मिनट में कितना कवर करेगा। 1 मिनट ऑफ आर हैंड, कम ऑन, विल बी 30 डिवाइड बाय 60। डू यू ऑल एग्री? यस। जैसे उधर हम लेकर डिवाइड किए थे वैसे हम यहां पर डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा अपने को? हाफ डिग्री, 0.5 डिग्री। Have you all understood this concept?
ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड। सबसे पहला, इसमें जिसको भी कंफ्यूजन है, वी विल क्लियर इट राइट नाउ, बिकॉज ऑल द सम्स आर बेस्ड ऑन दीज टू फिगर्स, 6 डिग्री एंड हाफ डिग्री। तो वो कैसे आया समझ में आना जरूरी है। अनिश बोल रहा है सर आपने पहले लेक्चर में बोला था कि 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स, राइट। वो मैथ्स वाला 60 मिनट्स है, ये टाइम वाला 60 मिनट्स है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। वो और ये में रिलेशन नहीं है। वो मिनट का मतलब टाइम वाला मिनट नहीं, एंगल वाला मिनट है, वैसा है। फाइन, आई थिंक सबको समझ में आ गया। कुछ लोगों का नो आ रहा है, मुझे पर्सनल में नहीं समझा। एक बार मैं वापस से बताता हूं, डोंट वरी। यस, मैं हाफ ऐसा इतना ही बनाता हूं, इसमें आपको आई थिंक ज्यादा बेटर समझेगा। सी ऑल ऑफ यू, आई एम रिपीटिंग अगेन, ध्यान से सुनो, समझ में आया तो और उसको परफेक्ट करते जाओ। ये मेरा 12 है, दिस इज माई 3, इसके बीच में एक 1 आएगा और एक 2 आएगा, ठीक है। एंड लाइक दिस इट विल रोटेट 12 1 2 3 4। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट मिनट हैंड, दिस इज मिनट हैंड। So I know that minute hand rotates in clockwise direction, and if minute hand starts at 12, complete one rotation and reaches to 12, so minute hand covers 60 minutes. It takes 60 minutes to reach back to 12. Yes? Okay. So in this 60 minutes of travel of minute hand, it actually covers 360-degree angle. So I can say minute hand in 60 minutes covers 360-degree angle. Any doubt in this point? First tell me that. Minute hand will cover 360-degree in 60 minutes. Any doubt? Then write yes. No doubt. Fine. So अगर मैंने बोला कोई भी अगर ऐसा क्वांटिटी होता है कि मैंने 10 बुक्स 100 रुपीज के लिए, तो एक बुक कितने का लिया, तो आप क्या करते हो? 100 डिवाइड बाई 10, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, राइट। तो 60 मिनट्स में 360 डिग्री कवर हुआ, तो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर होगा, तो 60 उधर जाके डिवाइड करेगा, तो वी विल गेट 1 मिनट का कैलकुलेशन। यस और नो? सो मैंने क्या किया, मैंने लिखा 1 मिनट अगर सपोज ट्रैवल करता है तो 60 मिनट्स ट्रैवल करता है तो 360 होता है, तो 1 मिनट करेगा तो उसका 60th पार्ट होगा। इट मीन्स इट विल बी 6 डिग्री। क्लियर सबको? So golden statement, bottom line is that minute hand will cover 6 degree in 1 minute, right? I will write down here. Minute hand covers, sorry, क्या लिख रहा हूँ मैं? हाँ, covers 6 degree in 1 minute. ठीक है, अभी हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। ये सबको समझा? ये सबको समझा? हाँ, क्वेश्चन अराफत का है कि सर बट विथ होम, विथ इटसेल्फ, खुद से, खुद से
वो पहले यहां पर था, वापस से वहां पर आया, तो उसने अपने आप से 360 बनाया। वो यहां पर जाएगा 1 मिनट पे, तो वो अपने आप से मतलब जो, अगर वो 12 पे है और दूसरा 1 पे है, तो उसका 6 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट पे रहेगा। तो समझ में आ रहा है क्या? हाँ, डायरेक्टेड एंगल का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है हर्षित, ठीक है, तो उसका कोई यूज नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आर हैंड के लिए। अभी ये आपका सेम डायग्राम है, दिस इज 12, दिस इज 3, 1, 2। कंसीडर दिस एज आर हैंड, ठीक है। नाउ टेल मी, आर हैंड अगर ये पूरा रोटेट होता है तो कितना टाइम लगाएगा? आर हैंड 12 से रोटेट होके 12 आने में कितना टाइम लगेगा? यस, so you will say 12 hours. So can I say that our hand covers 360 degree, 360 हुआ ना, but that in 12 hours? Is it right? Tell me that first, yes or no, those who have not understood. Our hand will cover the same 360 which minute hand used to do it in 60 minutes. Our hand will take 12 hours to cover that area. Very good. Now 12 hours means what? 12 hour means how many minutes? 12 into 60 minutes. It means 12 into 60 minutes में वो 360 डिग्री कवर करेगा। सो 1 मिनट में कितना करेगा? सेम रूल, 12 इंटू 60 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, तो 66 जा, then 6 1 जा, 6 2 जा, 1/2. It means in 1 minute of our hand, it will cover half degree. So the bottom line of this second example will be, minute hand will cover, sorry, our hand covers half degree in 1 minute. Our hand covers half degree in 1 minute. अभी किसी को कोई डाउट? अभी इससे इजी तो क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? सबको समझ में आ गया, एकदम क्लियर है? तो ये जो दो लाइन मैंने लिखा है ना, इसी को हमको लर्न रखना है बस। कैसे आया वो कोई पूछेगा तो तुम एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ये सब डायग्राम विग्राम बना के जैसा मैंने आपको दिया, दैट एक्सप्लेनेशन यू कैन गिव, बट दीज टू लाइन्स यू नीड टू रिमेंबर, राइट? ओके, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? आज थोड़ा एक्सटेंड होगा लेक्चर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इतना कंसेप्ट सीख लिया, तो अभी अपने को टाइम के अकॉर्डिंगली एंगल्स फाइंड करने आना चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा, सो प्लीज मैनेज। फर्स्ट क्वेश्चन वाज 11:10, 10 past 11, राइट? 10 मिनट ज्यादा हो गए 11 बजे से, ठीक है। तो पहले तो आपको इसका वॉल क्लॉक बनाने आना चाहिए। तो सपोज सर्कल आपका अच्छा नहीं है, जैसे मेरे तरह से, कोई बात नहीं, रेक्टेंगल में भी वॉल क्लॉक होता है, सो वैसा कुछ बनाते हैं, ठीक है। दिस विल बी 12, 1, 1, 2, 4, 5,
7, 8, 10, 11। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ 11 o'clock का मिनट हैंड कहां पर होगा? 11 o'clock का मिनट हैंड, मिनट हैंड। अरे 11:10 नहीं बोल रहा हूं मैं, 11 o'clock बोल रहा हूं, 11:10 नहीं। ओके, 11 o'clock का मैंने पूछा, 11 बजे मिनट हैंड कहां पर होगा? ओके, सो मिनट हैंड विथ which color I should use? चलो, ये मिनट हैंड है। और आर हैंड कहां पर होगा? ग्रीन कलर 11 पे होगा। ठीक है, yes, this is 11 o'clock. Now tell me at 11:10, ये अभी एंगल नहीं फाइंड करना हमको, तो 11:10 करना था ना, बट 11 से 11:10 इजी समझेगा। 11:10 पे ये जो मिनट हैंड है वो किधर जाएगा? 2 पे जाएगा। चलो 2 पे मिनट हैंड गया। ठीक है, तो मुझे ये बताओ क्या ये आर हैंड 11 पे ही रहेगा? आर हैंड 11 पे ही रहेगा क्या? नो, it will move towards 12, yes, but how much it has moved from 11 in 10 minutes? That slightly, थोड़ा सा को हम नंबर में कैसे बताएंगे? नंबर में कैसे बताएंगे कितना मूव हुआ? यस, ओके, आई कैन सी सबने आंसर दे रहे हैं। चलो यहां पर देखते हैं हम लोग, हमको एंगल्स फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखो। एंगल बिटवीन, वन लाइन में आंसर में लिखने वाला हूं, एकदम 100% अटेंशन हियर। एंगल बिटवीन minute hand and hour hand at 11:10 is equal to, ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम, assume assume this green one hour hand अगर 11 पे, exactly 11 पे, और ये exactly 12 पे, सॉरी 2 पे, तो मुझे बताओ आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने मिनट का कैलकुलेशन है? 5, 10, 15। यस, ये 15 मिनट्स किसका है? आर हैंड का है कि मिनट हैंड का है? ये जो पिंक वाला 11 से इधर 2 आया है वो किसका कैलकुल है? मिनट हैंड का है कि आर हैंड का है? दैट डेफिनेटली मिनट हैंड ना, क्योंकि इतने को आने को तो आर हैंड को तो पता नहीं कितना लग जाता है, राइट? तो अगर ये 11 पे हो और ये एग्जैक्टली 12 पे हो, तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज इक्वल टू, उसके बीच का जो एंगल होगा इट विल बी इक्वल टू 15 मिनट्स इनटू 6 डिग्री। सबको समझ रहा है? कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, बिकॉज 1 डिग्री में 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट हैंड कवर करता है, ये तो 15 मिनट का गैप हो गया, तो 15 इंटू 6 डिग्री। बट ये तो मैंने बोला, जबरदस्ती तुमको बोला 11 पे रखो, 2 पे रखो, तो ये आया। बट कभी भी ऐसा वॉच में आएगा कभी कि ये एग्जैक्टली 11 पे और ये 2 पे होगा? नहीं, ऑलवेज दिस मिनट, दिस आर हैंड विल शिफ्ट टू दिस साइड। तो वो जितना शिफ्ट होगा, सपोज पहले आर हैंड ऐसे था 11 पे, बाद में, जस्ट अ मिनट, थोड़ा और प्रॉपर बनाता हूं मैं, ये यहां पर 11 है, और जैसे 10 मिनट्स हुआ ये थोड़ा सा स्लाइटली यहां पर आ गया, राइट? तो इसका मतलब इतना जो एंगल है ये इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये 15 to 16 में,
क्योंकि हमने कैलकुलेशन इधर से किया है, पूरा लिया है, बट अभी तो इतना नहीं लेना चाहिए ना, समझ रहे हो क्या? अभी ये जो अपने को एक्सक्लूड करना है वो एक्चुअली कितना मिनट है, कितने मिनट में ये किसका है? कम ऑन, 10 मिनट्स, क्योंकि 11 o'clock को तो वो 11 पे ही था ना, 11 o'clock को वो 11 पे था, वो जो थोड़ा सा अप साइड बेंट हुआ है वो 10 मिनट्स में हुआ है। अच्छा, वो बेंट कौन हुआ है, मिनट हैंड हुआ है कि आर हैंड? बेंड कौन हुआ है, मिनट हैंड के आर हैंड? अरे बच्चे लोग, ये 11 से कौन हटा, आर हैंड, राइट। अच्छा, आर हैंड कितने टाइम के लिए बेंट हुआ है, 10 मिनट्स। तो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा कि आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री कवर करता है, तो कैन वी कैलकुलेट हाउ मच इज दिस एंगल जो उसने कवर किया रहेगा? यस, वो जो एंगल होगा वो इसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो 10 मिनट्स के लिए ट्रैवल किया और हर एक मिनट में हाफ डिग्री कवर किया, तो हाफ डिग्री इंटू 10। So the final answer will be 15 6 are 90 minus 5 degree, that will be 85 degree. Have you all understood? Have you all understood? I'll repeat once again. See, ये 15 इंटू 6 क्यों और ये 10 इंटू ये क्यों? ध्यान से, आर हैंड का जो 11 से मूवमेंट हुआ है, क्योंकि देखो आर हैंड जब वो 11 पे था तभी तो 11 बज रहे थे, तो ये मिनट हैंड 12 पे था, बट अभी मिनट हैंड 12 से 2 हुआ, बिकॉज ऑफ दैट 11 ने मूव किया, यानी ये जो आर हैंड का मूवमेंट है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 10 मिनट्स, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई बाय 10। बट हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिसमें से माइनस कर रहे हैं, नियरेस्ट 11 था, कि हमने ऐसा देखा कि 11 से 2 अगर होता तो हमने देखा 90 डिग्री होता, उसमें से ये सबट्रैक्ट कर दिया हमने जो एक्स्ट्रा डिग्री एंगल है। अंडरस्टूड ना सबको? तो देखो कंसेप्ट मालूम है तो 3 लाइंस में आंसर होता है। चलो एक सम और करते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या था, 20 past 7, 20 past 7, इट मीन्स इट्स 7:20, ठीक है। नाउ दिस इज माई वॉच, 12 3 6 9, 7:20 है बच्चों, राइट? तो मैं 7 सोचूंगा कि पहले 7 रहता तो क्या होता। यस, जो नजदीक रहेगा आपको वैसा, 7 के नजदीक है ना, तो इसलिए मैंने 7 सोच रहा हूं। 7 रहता तो क्या होता बच्चों, बोलो? मिनट हैंड 12 पे होता एंड आर हैंड एग्जैक्टली 7 पे होता, राइट? दैट इज एट 7, बट नाउ इट्स 7:20। नाउ इफ इट इज 7:20, तो ये जो मिनट हैंड है, ये जो मिनट हैंड है वो कहां पर आया होगा बच्चों? कम ऑन, 4 पे आया होगा, राइट? एंड ये जो आर हैंड है वो स्लाइटली थोड़ा इधर आ गया रहेगा, यस और नो? पक्का समझ रहा है? अच्छा, बट हमको हमेशा पॉइंट टू पॉइंट होगा तो कैलकुलेशन करने को इजी होता है, राइट? तो मैं पहला जो कैलकुलेशन कर रहा हूं वो मैं ओरिजिनल 7 लेके कैलकुलेट कर रहा हूं, कि अगर ओरिजिनल 7 से मुझे 7:20 एंगल कैलकुलेट करना होता तो मैं कितना मिनट्स का कवरेज होता? कम ऑन, 7 to 8, राइट? देखो कैलकुलेट कर लो कितने मिनट्स होते हैं, 7 से कैलकुलेट करो कितने मिनट्स होंगे।
कम ऑन फास्ट। ये 5 मिनट्स का गैप है ना, 4 तक जाना है अपने को। कितने मिनट्स का होता? 5, 10, 15, 20, 25, 7 से 12, 25 प्लस 20, 45। अगर 7 बजे एग्जैक्टली होता तो मिनट हैंड और इसके बीच का एंगल कितना होता? 45 होता। पक्का? ओके। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा आंसर में दैट, वो स्टेटमेंट लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे 45 × 6। 6 क्यों? मिनट हैंड का है ना ये कवरेज। बट ये तो कैलकुलेशन जब वो 7 पे था तभी का ना, अभी तो वो शिफ्ट हो गया, तो ये जो एंगल है वो इसमें एक्स्ट्रा हो गया, वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब वो जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो किसका सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? आर हैंड का। तो अभी आर हैंड 7 से इधर आया, कितने मिनट्स में आया? कमॉन कमॉन कमॉन, कितने मिनट्स में आया? वो 45 मिनट्स में आया क्या? नहीं, वो तो 7 पे था जब ये 12 पे था, तो वो तो 20 मिनट्स में मूव हुआ। सो इसका मतलब इंटू 20 होगा। सो ये कितना हो जाएगा बच्चों? टेल मी। 270 minus 10, that will be 260 degree. Have you all understood? Any doubt, please ask. अनिश क्या बोल रहा है? प्लस आएगा? नहीं समझा अनिश, प्लस क्या आएगा? टू सेवेंटी के बाद प्लस क्यों आएगा? देखो डायग्राम में, इनिशियल जो 45 × 6 आया है वो कहां से कहां तक का आया है? 7 से लेके 4 तक का। बट एक्चुअली जो एंगल है वो कहां से कहां तक है? सेकेंड वाला लाइन से इधर से इधर तक ना, तो वो तो ओरिजिनल में से इतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ऐड कैसे होगा? अनीश गॉट इट? ओके। अभी देखो ये सारे सम्स कैसे होते हैं, अभी आप खुद ट्राई करोगे तो आपको और भी डाउट निकलेगा। एंड बहुत जितने लोग बोल रहे हैं ना क्लियर है, नो डाउट है, जब वो खुद करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वेर यू आर गेटिंग स्टक, राइट? तो अभी मैंने ये 2 क्वेश्चन तो किया आपके लिए, ठीक है? टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि आज का कुछ पीडीएफ का ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन तो आप लोग ने सॉल्व किए ही है। अभी ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं ये जरा आप ट्राई करना खुद से घर पे बैठ के शांति से, जो मैंने कैलकुलेशंस बताया वो सब देखना, ठीक है? एंड ट्राई दिस ऑल सम्स, फाइंड आउट द एंगल्स, एंड देन इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं बताऊंगा। अभी मैंने 2 क्वेश्चन तो बता दिए आपको, अभी नॉट मोर देन 2, अभी रिमेनिंग फॉर यू ट्राई। नहीं आया चारों तो मैं चारों बताऊंगा, बट पहले आपको करना है विदाउट एनी हेल्प। ओके, सो जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज कंसेप्ट्स विच वी हैव डन इट टुडे। स्टार्ट से कर देता हूं मैं कि पीडीएफ ही भेज दो आप लोगों को। चलो पीडीएफ ही भेज देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अभी कभी स्क्रीनशॉट लोगे आप लोग, ठीक है? फाइन फाइन फाइन, आई विल जस्ट नाउ क्रिएट द पीडीएफ, नो प्रॉब्लम। So I hope everyone have understood this minute वाला calculation very clearly. सबको समझ में आ गया है? Okay. So thank you students for joining today. Okay. See you all next time. Thank you very much. Bye bye.